सौम्या, पढ़ाई हो रही है? विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ठीक। मांडवी, पढ़ाई चल रही है? ठीक है। So I am going to start lecture. Yesterday I discussed about OSI model, which consists 7 layers. That was physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. I also discussed the functionalities and responsibilities of physical layer. Now come to the responsibilities and functionalities of data link layer, which concerned about the data or the frame which will be sent from source to destination. So the data link layer transform the physical layer, a raw transmission facility, to a reliable link and is responsible for node to node delivery. It makes the physical layer appear error free to the upper layer. Upper layers means the आपका कौन सा है, नेटवर्क लेयर.
डेटा लिंक लेयर की अपर लेयर है नेटवर्क लेयर. So the responsibilities morning responsibilities of data link layer. First one is framing. First one is framing. The main and prime important responsibility of data link layer is framing. Means the data link layer divides the stream of bits received from the network layer into manageable data unit known as frame. मैं डिफिनीशन लिख भी दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. The DLL, the data link layer divides the stream of bits received from the network into manageable data unit भाई टाइम पे आप लोग आया करिए. कॉल्ड फ्रेम्स, क्योंकि एग्जाम पे क्वेश्चन आता है व्हाट आर फ्रेम्स, व्हाट इज फ्रेम्स. ओके. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर इज फ्रेमिंग. जो भी लेट से ज्वाइन किए हैं, फ्रेमिंग मीन द डेटा लिंक लेयर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स बिकॉज डेटा इज sending in the form of bits. So stream of bits received from the network layer into manageable data units called frames. किसने? अब आ रही है? हाँ, थोड़ी देर लगेगी. सेकेंड, physical addressing. Second responsibility is the physical addressing. Means if frames are to be distributed different system on the network, the data link layer adds a header to the frame to define physical address of the sender, means source address, and receiver known as destination address of the frame. And it is the responsibility of data link layer to establish or create a source address and the destination address. If the frame is intended for a system outside the sender networks, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये नेटवर्क के बाहर है, ठीक है, उसको भी सेंडर सेंड करना चाह रहा है टू द डेस्टिनेशन पॉइंट. The receiver address is the address of device that connects one to the network for the next. Physical addressing आगे भी हम लोग बताएंगे किस तरह से establish होती है. Third one is flow control. Very important responsibility of data link layer. Flow control means जब भी हम पैकेट्स को सेंडर टू रिसीवर सेंड करते हैं तो उस फ्लो को कंट्रोल करना. टाइम मैनेजमेंट मींस ये चेक करना कि रिसीवर इज कैपेबल टू एक्सेप्ट द फ्रेम विच इज सेंड बाय रिसीवर, वो सेंड बाय सेंडर. सो इफ द रेट एट विच द डेटा एब्सॉर्ब्ड बाय द रिसीवर is less than the rate produced in the sender, the data link layer impose a flow control mechanism to prevent overwhelming the receiver. और इसके लिए दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, स्टॉप एंड वेट और दूसरा है
स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल अभी सेकेंड यूनिट में डेटा लिंक लेयर को जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो ये दोनों प्रोटोकॉल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि इट चेक्स द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ रिसीवर एंड आल्सो द डेटा रेट फ्रॉम विच द पैकेट्स और फ्रेम्स सेंड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन एंड इफ देयर आर सम डिस्टर्बेंस देयर इज सम आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ सेंडिंग पैकेट फ्रॉम सोर्स टू द receiver ends, then it is also controlled by the data link layer with the help of two important protocol, stop and wait with acknowledgement procedure also यहाँ पे इंक्लूड होता है, और दूसरा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ये एक अलग मैकेनिज्म होता है। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ है एरर कंट्रोल। It is also important responsibility of data link layer to control and check the error and send the frames to the receiver and error free packets or frames. The data link layer adds reliability to the physical layer by adding mechanism to detect and retransmitted damaged or Pallavi times हो damaged or lost frame. It also uses a mechanism prevent duplication of frames. मतलब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर की कि ऐसा ना हो कि कोई किसी ने भी एड्रेस को कैप्चर करके डुप्लीकेट फ्रेम को सेंड कर दिया हो उसी नेटवर्क मीडियम या लाइन के थ्रू। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एरर कंट्रोल इज नॉर्मली अचीव्ड थ्रू अ ट्रेलर एडेड टू द एंड ऑफ फ्रेम। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें बिट स्टफिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसमें कि हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर देते हैं। तो चाहे अब ट्रेलर एंड का मतलब या तो लास्ट में या मिडिल में, ये डिपेंड करता है कि जो कैप्चरिंग है वो किस लेवल की है और हमारे डेटा की सेंसिटिविटी कितनी है, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देन वी एड सम एक्स्ट्रा बिट्स, zeros or ones, and it also decoded at the receiver end. So that is the mechanism to control errors. Fifth one is access control. This is another responsibility of data link layer. Means when two or more devices are connected to the same link, data link layer protocol are necessary to determine which device has control over the link at a given time. ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक्सेसिबिलिटी लिमिट्स करनी है, उसमें या तो आप सेशन लगा दीजिए या कोई टोकन, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लैन के प्रोटोकॉल में एक टोकन बस टोकन रिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो कि इंप्लीमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर नोन एज डेटा लिंक लेयर to control the accessibility of any end, that is sender end or receiver end. Next come to the third layer which is network layer. इसकी हर लेयर इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनिंग, एट्रीब्यूट्स किसी न किसी लेयर के जरूर पूछे जाएंगे। और ये ऑल 7 लेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू योर 4 यूनिट्स एज पर योर कैरिकुलम और सब्जेक्ट सिलेबस में जिस तरह से है। तो नेटवर्क लेयर का मेन काम क्या होता है? मेन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क एंड एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द पैकेट्स फ्रेम्स। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट possibly across multiple networks, that is known as also links. हाँ, हाँ उनसे कहो कि आए, हम तो सभी को दे रहे हैं, वो उनका नेटवर्क ही गड़बड़ है हमको लग रहा है, उनसे कहिए दोबारा आए।
Request करें. So repeating again, network layer is responsible for the source to destination delivery of a packet, possibly across multiple network links, whereas the data link layer oversees the delivery of packet between two systems on the same network or link. The network layer ensures that each packet gets from its point of origin to its final destination. मतलब it is responsibility of network layer कि whenever sender sends any packets to the receiver end, towards the receiver end, then it must be ensured and the functioning of network layer to safely reach the packet at destination end. ये नेटवर्क लेयर की ही प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट्स वाई सोर्स टू डेस्टिनेशन या एंड टू एंड डिलीवरी इज द प्राइम रोल ऑफ नेटवर्क लेयर. रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अनुसार टाइम पे आया करिए. फर्स्ट इज लॉजिकल एड्रेसिंग. लॉजिकल एड्रेसिंग, द फिजिकल एड्रेसिंग जो कि आप कौन इंप्लीमेंट करता है वो डेटा लिंक लेयर करती है, और लॉजिकल एड्रेसिंग जो है वो नेटवर्क लेयर का काम है. द फिजिकल लेयर एड्रेसिंग इंप्लीमेंटेड बाय डेटा लिंक लेयर हैंडल द एड्रेसिंग प्रॉब्लम लोकली, लोकल एंड पे करती है. इफ पैकेट पासेस द नेटवर्क बाउंड्री we need another addressing system to help distinguish the source and destination system. मतलब जब पैकेट आपके ट्रेवलिंग प्लेस पे होता है, यानी ना वो सेंडर एंड के पास करीब होता है ना ही जो डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाला होता है, जो बीच में ट्रेवलिंग है उसकी एड्रेसिंग को मेंटेन का काम जो है, मेंटेनेंस का काम वो आपका नेटवर्क लेयर करता है. The network layer adds a header to the packet coming from the upper layer, means transport layer. Network layer की जो upper layer है वो है transport layer. That among the other thing include logical address of sender and receiver. Second responsibility है, इसकी बहुत ज्यादा responsibility नहीं होती है. Routing, मतलब रूट डिसाइड करना. So when independent network, many other network or links connected together to create a internetwork. Internetwork का मतलब network of network. Internetwork is network of network, जिसमें कि कुछ आपके इंडिपेंडेंट नेटवर्क भी इन्वॉल्व होते हैं और उनके थ्रू भी आपको पैकेट सेंड करने होते हैं. सो अ लार्ज नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस विद द इंटरनेटवर्किंग टूल्स विच ऑलरेडी डिस्कस्ड, और आई आल्सो गिवन द नेम, मींस राउटर्स आपका हो गया, गेटवे हो गया, ब्रिज हो गया. ये सब जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, द मेन फंक्शन टू डिसाइड एक्चुअल रूट टू द पैकेट टू दियर final destination. So it is another function of network layer. There are many algorithms, many process to find the shortest route of network path, जिसमें कि आपकी जो है प्रिम्स एल्गोरिथम हो गई, डिजक्राज एल्गोरिथम्स हो गई, क्रुस्कल एल्गोरिथम है, और भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि जब नेटवर्क लेयर को डीप में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें शॉर्टेज पाथ या शॉर्टेस्ट राउटिंग किस तरह से निकालना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. फोर्थ लेयर है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर. फोर्थ लेयर इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर. द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. एज नेम सजेस्ट, ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है. सो
The transport layer is responsible for source to destination end-to-end delivery of entire message. ओके अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि एंड टू एंड डिलीवरी इज आल्सो टास्क ऑफ नेटवर्क लेयर एंड अगेन आई एम टेलिंग अबाउट द एंड टू एंड डिलीवरी इज आल्सो टास्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. देन कम टू द difference between end-to-end delivery task performing by both of these layer. Means the network layer oversees end-to-end delivery of individual packets only. अब difference आप देखिए. Means the main prime responsibility of network layer as end-to-end delivery of individual packet. It does not recognize any relationship between those packets which is not directly connect to the this packet or another packet. It is only responsible to the current packet which is on traveling. It treats each packet one independently as though each piece belong to a separate message, whether or not it does. सीधी सी बात, ये एक पर्टिकुलर पैकेट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है. और जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है वो पूरे मैसेज यानी नंबर ऑफ, क्योंकि मैसेज होता है वो पैकेट्स या फ्रेम्स के फॉर्म में जाता है, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर की एंड टू एंड डिलीवरी प्रॉपर्टी या मैकेनिज्म है वो पूरे मैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द टास्क एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ नेटवर्क लेयर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. The transport layer, on the other hand, ensure that the whole message arrives intact and in order also. ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने बताया फ्रेम्स के फॉर्म में जा रहा है, ऐसा ना हो कि जब रिसीवर एंड पे जा रहा है तो उसकी सीक्वेंसिंग में कोई प्रॉब्लम हो. तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की कि जो होल मैसेज विच इज गोइंग टू डेस्टिनेशन एंड इज ऑन अकॉर्डेंस या सीरियली या वट एवर ऑर्डर यू डिसाइडेड. साथ ही साथ द अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर विद एरर फ्री एंड आल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ मैसेजेस एट द डेस्टिनेशन लेवल एंड एज वेल एज ट्रेवलिंग path also. Then responsibilities of transport layer in detail point wise. First, service point addressing. मीन्स सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जहां से आपका पैकेट स्टार्ट हुआ है. देखिए सबके अलग अलग एड्रेसिंग के अलग अलग काम है. जो डेटा लिंक लेयर है वो भी एड्रेस मेंटेन करता है, लेकिन वो फिजिकल एड्रेस मेंटेन करता है. नेटवर्क लेयर आल्सो मेंटेन द एड्रेस लॉजिकल एड्रेस. और ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग मतलब जहां से पैकेट स्टार्ट हुआ, सर्विस पॉइंट ट्रेवलिंग के लिए स्टार्ट हुआ एंड टू द एंड और डेस्टिनेशन पॉइंट तक की एड्रेसिंग को ये मेंटेन करता है. मतलब इन दोनों के काम तो ये है कि इन्होंने सोर्स और डेस्टिनेशन और फिजिकल लेवल लॉजिकल लेवल पे डिसाइड किया, लेकिन जो बीच का पाथ है उसके जो बीच नंबर ऑफ जो आप कह सकते हैं ब्रेक थ्रूज जो लगते हैं या हॉल्ट होते हैं या चेकिंग के लिए कहीं ना कहीं आपने कुछ पॉइंट बना रखे हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा. तो उसकी जो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का मेंटेनेंस का काम भी ये ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करता है. Second, segmentation and reassembly. ये सेकेंड पॉइंट है. सेगमेंटेशन का मैंने आपको बताया भी एग्जाम्पल, जिस तरह से जो मैसेज है वो पार्ट्स में जाता है, ठीक है, फ्रेम्स के फॉर्म में जाता है, पार्ट्स में जाता है, टुकड़ों में जाता है. तो सेगमेंटेशन उनको अलग अलग करना, उनके पार्ट को क्रिएट करना और बाद में रीअसेंबली एट द डेस्टिनेशन एंड. इट इज एंटायर जॉब परफॉर्म बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर.
means a message is divided into transmittable segments. Each segment contain a sequence number. ये ध्यान रखना है, सोचना है कि जब भी हम किसी भी मैसेज को भेजते हैं, फ्रेम को भेजते हैं, तो उसका एक साथ में सीक्वेंस नंबर भी रहता है, क्योंकि तभी आप उस सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर में मेंटेन करेंगे. जिस तरह से हम पेंट भी जो प्रिंट आप देते हैं सर्वर प्रिंटर पे, तो उसमें क्या करते हैं कि जब आप पेजेस निकल रहे हैं तो उसमें पेज नंबरिंग कर देते हैं. पेज नंबरिंग से क्या होता है कि आपको उसको कंटेन करने में, अगर किसी ने इधर कर दी हो, या कभी कभी अब जैसे सर्वर पे लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट आप दे रहे हैं और एक साथ ना दे करके वो पार्शियली आप उसमें प्रिंट कमांड दे रहे हैं, उसके बीच बीच में किसी और पर्सन ने, क्योंकि प्रिंटर जो है आपका सर्वर पे लगा हुआ है तो किसी और नहीं, बिकॉज यू आर सेटिंग योर सीक्वेंसिंग, किसी और पर्सन ने भी वहां पे अपनी जॉब प्रोसेस कर दी, तो उसकी जॉब पहले प्रोसेस होगी. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सीपीयू शेड्यूलिंग में. तो उस केस में सीक्वेंस नंबर या वो पेज नंबर इज वेरी यूजफुल व्हेन यू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एंटायर मैसेज. सो each segment containing a sequence number, these numbers enable the transport layer to reassemble the message correctly upon arriving at the destination end, and also identify and replace packet that were lost in transmission. देखिए हमने बताया कि डेटा लिंक लेयर का भी काम काफी कहते चैलेंजिंग होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर भी काफी इन्वॉल्व रहता है, एंड टू एंड एंड सेफेस्ट डिलीवरी ऑफ द फ्रेम्स. ट्रांसपोर्ट लेयर भी रहता है, लेकिन ऑल्सो देयर आर चांसेस टू लॉस द पैकेट और डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ द पैकेट्स आल्सो. ये भी चांसेस रहते हैं कि पैकेट आपका कोई लॉस ना हो गया हो या कोई डिस्ट्रॉय ना हो गया हो. तो इसको भी मैनेजमेंट का काम ट्रांसपोर्ट लेयर करता है. और ये जो पैकेट्स नंबर या सीक्वेंस नंबर है, ये वेरी हेल्पफुल होते हैं कि कौन सा पैकेट आपका करेक्टली पहुंच गया है और कौन सा पैकेट आपका लॉस हो गया या कहीं कुछ डैमेज हो गया, कोई बिट्स लॉस हो गए. थर्ड वन, कनेक्शन कंट्रोल. जो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का जो टास्क है, ये भी परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. मींस इसमें दो प्रोसीजर होते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड रिलीजिंग ऑफ कनेक्शन. मतलब पहले आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे, आपका पैकेट डेस्टिनेशन तक सही से पहुंच जाएगा, उसके बाद उस कनेक्शन को रिलीज करना है या डिस्ट्रॉय करना है, दोनों प्रोसेस. तो ये प्रोसेस भी परफॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. और उसके बाद फ्लो कंट्रोल. जिस तरह से डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो द टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर इज आल्सो responsible for flow control of packets. Means like the data link layer, transport layer is responsible for flow control. However, flow control at this layer means transport layer is performed end to end rather than across a single link. क्योंकि बताया ना, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल एंटायर लिंक. सो डेटा लिंक लेयर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर a single link, but transport layer is responsible for and also control the flow of packets for entire link. Fifth one, error control. डेटा लिंक लेयर भी रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोल द एरर फ्रॉम पैकेट्स, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल द एरर. So, like the data link layer, transport layer is responsible for error control. However, error control as this layer is performed end to end rather than across a single link. Same difference जैसे कि आपका फ्लो कंट्रोल में, सेम इसमें भी है. क्योंकि डेटा लिंक लेयर सिर्फ अपने पर्टिकुलर लिंक के लिए या सिंगल फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सिंगल पैकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बट ट्रांसपोर्ट लेयर एंटायर मैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. कंट्रोल दोनों ही करते हैं. ठीक है, ये चार हमने आपको अभी तक 4 लेयर बता